Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Shrimad Bhagavatam, 3rd canto, 5th chapter, text number 29. Chapter is titled as Vidurji's Talk with Maitreya Rishi. Here, in this conversation, at this point of the time, Maitreya Rishi is explaining to Mahatma Vidur about the process of creation, how this whole universe came into existence. So, in the previous shloka, we learned that Maitreya Rishi explained that first there was Krishna himself. Then from Krishna, different expansions of Krishna came, and the prominent expansions are the Vishnu expansions, Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, and Shirodakshai Vishnu. And then the material creation took place. There were two types of creation, material and spiritual creation. The spiritual world is under the control of Srimati Radharani Antaranga Shakti, and the material world is under the control of Maya Shakti, Mahamaya. Now, before creation of the material world, there is an entity called as Mahat Tattva is created. And underneath the control of Mahatva Tattva are the three modes of nature. And every living entity who is under the three modes of nature, he is affected by an entity called as ego. So this ego, false ego, is that people start thinking that they are this body, Sharira. And that, as long as there is an ego, false ego, and we are thinking that we are the enjoyers, we cannot serve Krishna properly. So, Mahatattva is sort of a medium between the pure spirit soul and the conditioned soul or the material existence. So, as soon as one transcends these three modes of nature, then one comes in contact with spiritual world. Okay. Then in this shloka further, Maitreya Rishi is explaining about the Mahatattva and the creation of the material world. So here it is explained in this shloka. Here the shloka is on the screen. You can repeat after me. Mahatattvad Vikurvanat Aham Tattvam Vyajayata Karyakarna Kartatma Bhutendriya Manomaya Vaikarikas Tejasascha Tamasa Cheti Aham Tridha. So whole shloka I will repeat for benefit of all of us. Mattvad vikurvana aham tattvam vyajayata karyakarana kartatma bhutendriya manomaya vaikarikastejascha tamasasriti aham tridha. Translation. Maitreya Rishi is saying, Mahatattva, or the great causal truth, transforms into false ego. Mahatattva transforms into false ego, which we were just talking about, which is manifested in the three phases: cause, effect, and doer. Karan, Parinam, or Karta. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. False ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. तो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि और बता रहे हैं महत्त्व के बारे में, और महत्त्व के कारण एक फॉल्स ईगो, अभिमान, एक अहंकार तैयार होता है,
ये अहंकार कभी सोचता है कि मेरे कारण सब हो रहा है। ये अहंकार ऐसे सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, और ये अहंकार ये भी सोचता है कि ये सब मेरा ही परिणाम है, ऐसा अहंकार के कारण, क्योंकि ये महत्त्व के कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैं करता हूँ, मेरे कारण हो रहा है, मैं ही करता धरता हूँ, ये है मन के मेंटल प्लेन के ऊपर, मानसिक। और ये जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर मानते रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक ये चलते ही रहेगा। तब तक वो यही सोचेगा कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है, आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। तो क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो कुछ शरीर है ना, लेकिन देखिए शरीर छोड़ने वाला है, छूटने वाला है, ये उसको भूल गया है। हाँ, तो उसमें जब ही ये ऐसे सोचते रहता है कि मैं एक शरीर हूँ और ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है, तभी उसमें एक अहंकार आ जाता है। और जब ये अहंकार आ जाता है तो उसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव फटाफट होने लगता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सत्वगुण में काम करता है उसके पास भी अहंकार है, उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। जो रजोगुण में है उसमें ही अहंकार है, क्योंकि वो लगता है कि अरे मुझे और कमाना है, और काम करना है, और मेहनत करनी है। और जो तमोगुण में है वो तो गया हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, वो पाप करता है सब। तो ये महत्त्व के कारण सब हो रहा है। तो परपट में प्रभुपाद जी में और समझा रहे हैं, प्योर लिविंग एंटिटी in his original spiritual existence is fully conscious of his constitutional position as an eternal servant of the Lord. All souls are situated in such a pure consciousness, are liberated, and therefore they eternally live in bliss and knowledge in various Vaikuntha planets in the spiritual sky. तो जो शुद्ध जीव है, नित्य मुक्त, जो शुद्ध जीव है, जिनको मालूम है कि हमारा एक ही काम है जीवन में, हम परमात्मा के अंश है, भगवान की सेवा करना यही हमारा कार्य है, बाकी ये भोग विलास तो पाप का कारण है, ये हमें बांधने वाला है। ये जीव जिसको ये मालूम है कि ये पाप में हमें नहीं पड़ना है, वो जीव तो भगवान के धाम में रहते हैं, वैकुंठ प्लैनेट में रहते हैं। देखिए जेल में कौन रहता है? जो गुनहगार है, वो जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया, उसको जेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो बाहर फ्री रहेगा। वैसे ही जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरी सेवा करो, मेरे ध्यान करो, मेरा। तो जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं वो उनके ऊपर भौतिक जगत में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो नित्य मुक्त रहते हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, वो उनको कोई जेल बिल की जरूरत नहीं है। जो बांधे हुए हैं, जो नित्यबद्ध, जो बहुत पाप करते हैं, जो बहुत भोग करते हैं, भगवान को छोड़ के भोग करना ये पाप है। देखिए सब कुछ भगवान का है ना, तो फिर हम भगवान के बिना कैसे वो उसका भोग कर सकते हैं? जैसे कि आपके पास घड़ी है, तो आपकी घड़ी मैं थोड़ी ले सकता हूँ, ये तो आपका है। अगर आपने खुद होके दिया तो ठीक है, ऐसे तो हम नहीं ले सकते हैं। वैसे ही ये सब कुछ भगवान का है। सूर्य, चंद्र, तारे, हवा, पानी कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। तो अगर हम भगवान के आशीर्वाद के बिना, भगवान की आज्ञा के बिना कोई भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं तो ये पाप कहलाता है, और फिर हमें जन्म मृत्यु के बंधन में फंसना पड़ता है। When the material creation is manifested, it is not meant for them. For them means those who are pure souls. Eternally liberated souls are called as Nitya Muktas, and they have nothing to do with the material creation. जैसे मैंने बताया, अभी हम बात कर रहे थे नित्य मुक्त के बारे में, कि ये जो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनको कोई शरीर का कोई परिणाम नहीं होता है। तो ऐसे आत्मा को नित्य मुक्त
And they have nothing to do with the material creation. Material creation is meant for rebellious souls who are not prepared to accept the subordination under the Supreme Lord. तो ये भौतिक जगत इसलिए लिए बनाया गया है, तो जो लोग जो भगवान में विश्वास नहीं है या फिर भगवान की आज्ञा का पालन ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो बहुत भोग प्रवृत्ति है, तो ऐसे लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत का क्या नियम है? पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण। भौतिक जगत में ये बहुत बड़ा नियम है कि जन्म लेना, फिर शरीर जीर्ण हो जाना, फिर वृद्ध हो जाना, फिर कोई बीमारी हो जाना और मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये भौतिक जगत का ये क्वालिटी है। क्या है कि यहाँ पे मृत्यु निश्चित है भौतिक जगत में, और मृत्यु के पहले दुख, और दुख के पहले बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मेहनत। देखिए मनुष्य छोटा रहता है, जब भी शरीर छोटा रहता है तभी भी दुख रहता है। जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे आते हैं, वो बेचारे रोते हैं, वो माता पिता को भी नहीं मालूम पड़ रहा है वो क्यों रो रहे हैं, लेकिन उनको दुख तो सहन करना पड़ता है। बच्चों को बार बार बीमार हो जाते हैं, कितने सारे बच्चे आते हैं, वो सारे इसको सर्दी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, साल में 12 महीने में से 8 महीने तो बीमार ही रहते हैं कुछ ना कुछ बच्चे। तो ये दुख है। हाँ, बच्चों का दुख बहुत मुश्किल रहता है, हमें समझ में नहीं आता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी उनको इतना ही दुख है, वो पढ़ाई करना, स्कूल जाना, इतना इतना, फिर वो स्कूल जाने के बाद फिर जॉब का, फिर वो फैमिली, फिर झंझट जॉब, इतना सारा दुख और तकलीफ करते करते कभी कुछ बीमारी हो जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ होता है, कभी किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है, कुछ लोगों को क्या क्या बीमारी आजकल हो रही है लोगों को। और फिर वो होने के बाद फिर जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो शरीर काम नहीं करता है, आँख कान पैर कुछ काम नहीं करते हैं, और फिर लोग जैसे ही आपका शरीर काम करना बंद पड़ जाता है तो लोग आपका ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं ये कुछ काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया है, फेंको इसको बाहर। तो सब उनको बूढ़े को कहाँ रख देते हैं, वो बोलते हैं इनका ध्यान ये खुद रखेंगे, हमें नहीं करना, ऐसे है आजकल। और फिर मृत्यु के समय तो बहुत तकलीफें हैं। तो ये है ये जीवन का चक्र। तो इससे अच्छा तो हम भगवान की सेवा में चले जाएं, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें नहीं है। वहाँ तो हम सब इटर्नली है, वहाँ कोई ओल्ड एज डिजीज नहीं है। लेकिन ये भौतिक जगत में जब तक आप जेल में हैं तब तक आपको सब जेल के नियम लागू पड़ते हैं। जैसे कि जेल में आपको कुछ खाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड मिलता है, और वो बनाया हुआ ही खाना मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा। जेल में गुलाब जामुन नहीं मिलेगा आपको, है ना, रसगुल्ला ये वो नहीं मिलेगा। वैसे ही भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वो भौतिक जगत में नहीं मिलेगा। The material creation is meant for rebellious souls who are not prepared to accept subordination under the Supreme Lord. This spirit of false leadership is called as false ego. It is manifested in three modes of material nature and exists in the mental speculation only. Those who are in the mode of goodness think that each and every person is God, and they laugh at the pure devotees who try to engage in the transcendental loving service of the Lord. Those who are puffed up by the mode of passion try to lord it over the material nature in various ways. Some of them engage in altruistic activities, as if they were agents appointed to do good to others by their mental speculative plans. Such men accept the standard ways of mundane altruism, but their plans are made on the basis of false ego. The false ego extends to the limit of becoming one with the Lord. The last class of egoistic conditioned souls, those in the mode of ignorance, are misguided by the identification of gross body with the self. Thus, all their activities are concentrated around body only. All these persons are given the chance to play with the false egoistic ideas, but at the same time, the Lord is kind enough to give them a chance to take help from scriptures like Shrimad Bhagavatam and Shrimad Bhagavatam, so that they may understand the signs of Krishna and thus make their life successful.
The entire material creation, therefore, is meant for falsely egoistic living entities hovering on the mental plane under different illusions in the mode of material nature. तो यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो नित्यबद्ध है वो आइधर सत्व गुण में, रजोगुण में या तमोगुण में रहते हैं, लेकिन सभी जगह सत्व रजो तमो सभी जगह एक प्रकार का ईगो रहता है कि मैं ही करता रहता हूँ, और इसके कारण वो बंधे रहते हैं। तो भगवान उनको छुड़ाने के लिए बहुत दया कृपा करके भागवतम और भगवत गीता के रूप में आते हैं। ये श्रीमद् भागवतम भगवान का रूप है। भगवान अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं ये श्लोक के थ्रू, और भगवान हमें कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोग अभी भी समझ जाइए, अभी भी समय बिता नहीं, अभी भी समय है तुम्हारे पास, अभी भी सुधर जाइए और ये भोग करने के बदले त्याग करना चालू कर दीजिए। जितना भोग करेंगे उतना ये बंधन में बंधते जाएंगे, जितना पाप करेंगे उतनी आपकी सजा बढ़ती जाएगी, है ना? यस और नो? यस, जितना पाप करेंगे उतनी सजा ज़्यादा। जैसे आपने आज कुछ कुछ पाप किया, अगर 2 दिन के बाद 3 दिन तो आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। जितना ऐड होते जाएगा क्या हो जाएगा, आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा फिर, और दुख तो कहाँ तक दुख सहन करेंगे आप? तो भगवान कृपा करके हमें कहते हैं कि आप भगवत गीता और भागवतम पढ़िए। जब हम भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमारा मन थोड़ा थोड़ा शुद्ध होते जाएगा। जितना हमारा मन शुद्ध होते जाएगा उतना हमारा पाप करने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, और फिर हमें भगवान हमारा पूर्णतः, हमारा जब मन शरीर काया वाचा मनसा सब कुछ क्लीन हो गया, फिर वी कैन गो टू कृष्णा। अदरवाइज क्लीनिंग के बिना तो भगवान के पास जाना मुश्किल है। यस, जो भी हम खा रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। जो भी खाना है, आप यानी वेजिटेरियन है, देखिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, नहीं, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो मुझे भोग लगाए बिना जो खाते हैं वो पाप खाते हैं। कि हम जो भी अन्न ग्रहण करें पहले वो भगवान को ऑफर करें, और हम भगवान को मांस मच्छी अंडा ये नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम में भक्ता प्रयच्छति। इसलिए हमें ऐसी चीज़